بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 10 جمادی اول بدھ کے دن قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لو۔ پڑھتے ہی میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ ناظرین کرام، آج 10 جمادی اول بدھ کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزہ دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا، ورنہ میرے بھائیوں میری بہنوں سارا سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آج 10 جمادی اول بدھ کا وہ مبارک دن آ چکا ہے، میں نے جس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ جو شخص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، ایک دن میں اس کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ 10 جمادی اول بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، جمادی اول کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج 10 جمادی اول بدھ کے دن اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، اللہ نے ہر مقصد میں اس بندے کو کامیاب کیا۔ جس شخص نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ شخص آج 10 جمادی اول بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے، اپنی من مانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ سکے۔ یاد رکھیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے نام کا، اللہ کے کلام کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دینے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا وقت ضائع نہیں جائے گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا بھی بڑا ہو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن حاجات پوری ہو جائیں، جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھ کے اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پہ رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، پھر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ جس شخص کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، جو شخص جلد پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، جلد بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، مقدر سمجھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، آئیے ناظرین کرام اب ہم جان لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 جمادی اول بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں،
आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिम पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। जिसको जो चाहिए अल्लाह से मांग लो, क्योंकि ये 10 जमादी अव्वल बुध आपकी तकदीर को बदलने वाला है, नसीब को खोलने वाला है, हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बनाने वाला है। आपके ऊपर कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, इसकी नियत कर लें कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए। या किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मुझे जाती मकान मिल जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लें। आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, उसके लिए पढ़ लो। कोई भी आपकी ख्वाहिश है, हाजत है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी, उसके लिए पढ़ लो। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। वो नाम या वहाबू है। या वहाबू रब करीम का वो नाम है जो एक दिन में हर हाजत को पूरा करता है। या वहाबू रब करीम का वो सफाती नाम है जो हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देता है। अगर आप बंद गली में जा चुके हैं, आपका कोई काम अटका हुआ है, आप बेबस लाचार मजबूर हो चुके हैं, या वहाबू को पढ़ें। आपकी तमाम की तमाम मजबूरियां, तमाम की तमाम परेशानियां, तमाम की तमाम मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। या वहाबू रब करीम का वो नाम है जो अर्श इलाही को हिला के रख देता है, पढ़ने वाले की हर हाजत को पूरा करता है। आपने या वहाबू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू एक बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वहाबू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या वहाबू को 11 बार पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से दुआ करनी है। या वहाबू 11 बार पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से हाथ फैला के मांगना है, आंखों में आंसू लिए मांगना है। आपने या वहाबू को 11 बार पढ़ के अल्लाह को राजी कर लिया। अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों? दूसरे नंबर पर आपने कुरान मजीद की एक सूरत पढ़नी है। ये सूरत को एक बार इस सूरत को एक बार पढ़ने से 10 पारों का सवाब मिलता है, 2 बार पढ़ने से 20 पारों का सवाब मिलता है और 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। आपने मेरे भाइयों सूरा इखलास पढ़नी है। सूरा इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने मेरे भाइयों सूरा इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा मेरी वहदानियत को बयान करता है, मैं इसके लिए 7 आसमानों और 7 जमीनों के खजानों के मुंह खोल देता हूँ। 3 बार सूरा इखलास को पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती कोताही हो गई तो आप एक कुरान मजीद के सवाब से महरूम हो जाएंगे। और जिसने तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ 10 जमादी अव्वल बुध के दिन सिर्फ 3 बार सूरह इखलास को पढ़ लिया, इंशाअल्लाह इसका नसीब बदल जाएगा। ये वजीफा पढ़ते ही अल्लाह राजी हो जाएगा। 10 जमादी अव्वल बुध वाले दिन अल्लाह से जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आज पूरा होके ही रहेगा। आपने सूरह इखलास को 3 बार बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। अब आपने तीसरे नंबर पर एक कुरानी आयत को पढ़ना है, जिसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है।
आपने मेरे भाइयों ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ना है। जो शख्स चाहता है कि इसकी नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाए, अगर आप अपनी बेटी का या बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं, लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, अपनी बेटी के रोशन नसीब के लिए पढ़ लें। जिस बेटे को रोजगार नहीं मिलता, नौकरी की तलाश है, कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, जिस शख्स को लगता है कि इसके घर में बेरोजगारी है, बेऔलादी है, परेशानियां हैं, तंग दस्तियां खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, वो आज बुध के दिन आयत करीमा को पढ़ के देख ले। आपने आयत करीमा को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दो बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन तीन बार हो गया। इस तरह से आप आयत करीमा को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों 100 बार पढ़नी है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह 100 दानों वाली आपने इस आयत करीमा की पढ़नी है। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद आपने फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफा पढ़ने के बाद सजदे में जाएं, नहीं तो हाथ उठा के रब करीम से दुआ करें। दोस्तों याद रखिएगा कि ये 10 जमादी अव्वल बुध के दिन का शर्तिया और खास अमल है। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। इस मौके से आज तक जिसने फायदा उठाया, अल्लाह ने इसको कामयाबी अता फरमाई। जिस शख्स ने 10 जमादी अव्वल बुध के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से पढ़ लिए, अल्लाह ने हर मकसद में कामयाब किया, अल्लाह ने हर हाजत को पूरा किया, अल्लाह ने हर परेशानी बीमारी का खात्मा फरमा दिया, वो जो सारी उम्र ना मिल सका। आज बुध के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसी तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं, और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।